So till yesterday we had discussed that we have few operators where friend function will not work. It cannot be overloaded, right? So that was equal to function call operator, round bracket जिसको हम बोलते हैं, then subscript operator that is used in arrays, and class member access operator, arrow operator जिसको हम बोलते हैं. So today we are going to learn how we can overload new and delete operators. तो हमने ये पढ़ा है that new and delete are used for dynamic memory allocation and deallocation. So there we had used new int. तो हमने उसमें कैसे किया था, I will just inform कैसे हमने किया था. If I have जैसे हम इसको लिखते थे, I am using this new int, so this integer memory block will be allotted. किसको, यहाँ पर एक पॉइंटर होगा, ठीक है, एंड दिस पॉइंटर कैन बी डिक्लेयर्ड अबव, राइट. तो ये चीज हम करते थे. तो जब हम एक न्यू ऑपरेटर को यहाँ पर ओवरलोड करेंगे तो हम यहाँ जो भी पहले हम देख लेते हैं इसको कैसे ओवरलोड करते हैं. सो हमने ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा है दैट दिस इज एक्चुअली ओनली वी आर just writing a function only. Yes, we are putting some definition inside that function, and that function name is the operator keyword and followed by the operator symbol of the operator. Yes, so यहाँ पर here I am writing operator keyword and new is the operator that I have to overload. ठीक है, तो ये जो आगे है इसके size t, तो ये size of operator का data type होता है that is used here. एंड हमें पता है कि जब भी हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं सो दैट हैज टू रिटर्न सम पॉइंटर. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में बताया, तो जो भी यहाँ से हम न्यू इंट मैंने लिखा, द रिजल्ट विल बी allotted, that will be put into some pointer. ठीक है, तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, यहाँ मैंने एक void pointer लिया है. ठीक है, पॉइंटर का टाइप डिफरेंट, जैसे इंटीजर पॉइंटर होता है, फ्लोट पॉइंटर होता है, ऐसे एक वॉइड पॉइंटर भी हम ले सकते हैं. And inside the definition of this new operator overloading, here we will be performing some functionality which will perform the allocation of the data member or the object dynamically. ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, बट at the end we have to return the pointer to the memory. Fine. ऐसे ही जब हम delete operator को हम overload करेंगे, so that will be the main purpose of this delete operator overloading will be to delete an object. Yes, हमें पता है कि जब हम डिलीट करते हैं, हम नॉर्मली एक प्रोग्राम के अंदर, जैसे यहाँ पर, यहाँ अगर मुझे डिलीट यूज करना है तो आई विल बी यूजिंग डिलीट एंड आई विल बी राइटिंग डिलीट कीवर्ड फॉलोड बाय द पॉइंटर जिसको मुझे डिलीट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, I'll be freeing the memory pointed to by p. Now you need one, anyways we need one pointer, so that we are keeping here as the argument. ठीक है, न्यू में हम साइज क्यों रख रहे हैं, बिकॉज जो आपके ब्लॉक का साइज रहेगा, जो आप ब्लॉक हीप में लेना चाह रहे हैं, उसका हम साइज यहाँ पर रख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा क्या, न्यू को अगर हम ओवरलोड करते हैं, सो दैट विल बी मेनली एलोकेटिंग द मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट. एंड यहाँ आपको रिटर्न में क्या है, वी हैव टेकन वन, we are just returning pointer to memory. And delete operator, if we are overloading delete operator, that will be deleting an object. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल कर लेते हैं एक, ये वाली. So here in I have a one class called location, LOC, right? So location में I have two data members, longitude and latitude, and I have one default constructor. I have one parameterized constructor in this class. ठीक है, तो parameterized constructor में जो भी मेरे पास में दो arguments हैं, कि इनका डेटा किसको असाइन हो जाता है, लॉन्गिट्यूड एज वेल एज लैटिट्यूड, विच आर द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास लोकेशन. ठीक है, देन आई हैव शो फंक्शन जिसमें प्रिंट हो रहा है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की वैल्यूज, एंड आई एम okay, I'm not having display function. ठीक है, so now here I am now doing operator overloading for new and
डिलीट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है, बट आउट ऑफ द क्लास आई एम डिफाइनिंग दीज functions. Yes, so what we have to do first, the return type of the function, yes, followed by the class to which it belongs, then scope resolution operator, then operator keyword, राइट और फिर कौन से ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाहते हैं. सो दिस टाइम वी हैव न्यू ऑपरेटर, साइज टी इज द डेटा टाइप फॉर साइज. ये ऑटोमेटिकली जो भी आप उसमें ब्लॉक लेंगे उसका साइज कैलकुलेट करेगा. तो हेयर इनसाइड द डेफिनेशन, अब देखो हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना है, तो हम यहाँ पर न्यू तो नहीं यूज कर सकते बिकॉज न्यू को तो हम ओवरलोड कर रहे हैं. तो दूसरा हमारे पास में कौन सा मेथड है जो हम सी में यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैलॉक, राइट. तो मैलॉक से हम क्या करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं. वी असाइन मेमोरी ब्लॉक इन हीप. तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है एक एड्रेस दैट गेट्स स्टोर्ड इन द p, ठीक है, इन द पॉइंटर p. अब p का हमें यहाँ पर पता नहीं क्या डेटा टाइप है. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द वॉइड पॉइंटर. अब हमें पता है कि पॉइंटर्स आपने पढ़े हैं पहले, जैसे अलग अलग तरह के पॉइंटर्स होते हैं. पॉइंटर्स का अपना डेटा टाइप नहीं होता, बट हम क्या करते हैं, हम उसको डिफाइन जब या डिक्लेयर करते हैं, इट इज डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ डेटा इट इज स्टोरिंग. तो हेयर राइट नाउ आई एम यूजिंग वॉइड पॉइंटर दैट वी कैन टेक. तो इससे क्या होगा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगी. और मैलॉक के लिए आपको पता है, मैलॉक यूज करने के लिए हमें std.lib.h यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. ओके, देन व्हाट हैपेंस नाउ, मैंने ऑपरेटर न्यू को ओवरलोड कर दिया है. नाउ आई विल बी ओवरलोडिंग द डिलीट ऑपरेटर, ठीक है. तो ये void is the return type, loc is the name of the class, then followed by scope resolution operator, then operator keyword and delete symbol, that is the operator, ठीक है. तो इसका हमने क्या लिया था, इसमें हमने आर्गुमेंट एक पॉइंटर होना चाहिए जिसको हम फ्री करेंगे, जिसको हमें डिलीट करना है मेमोरी से. तो सी आउट मैंने यहाँ एक मैसेज दे दिया दैट इन ओवरलोडेड डिलीट व्हाट हैपेंस. नाउ हियर आई विल बी यूजिंग फ्री फंक्शन, राइट. तो उसके अंदर हमें पता है आर्गुमेंट क्या देना होता है, पॉइंटर जिसको हमें फ्री करना है, जहां से हमें मेमोरी को फ्री करना है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, अब मेन के अंदर मैंने यहाँ पर मेरी क्लास के टाइप पॉइंटर्स मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं. एंड देन आई हैव यूज्ड न्यू here with the help of, and I have written here object. और उस ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर रही हूँ, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया तो साथ में ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा, इट विल बी असाइनिंग 10 and 20 टू द डेटा मेंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है. नॉर्मली जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, कहाँ गया वो, एक मिनट, ये वाला. तो जैसे हम यहाँ पर पहले न्यू इंट, जो हमने जब ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि न्यू इंट इंटीजर ऐसे, तो इंट जितना मेमोरी ब्लॉक ये वहां पर ले लेगा इन हीप, ठीक है. तो यहाँ हेयर व्हाट इज माय मोटिव नाउ इज टू कीप एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखती हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट. तो यहाँ इसीलिए मेरे पास में जब इस एग्जांपल में मैं बात करती हूँ तो मेन के अंदर हेयर नाउ आई एम टेकिंग द ऑब्जेक्ट न्यू के साथ में, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट आई एम क्रिएटिंग, आई एम टेकिंग द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, और उससे हम कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं बिकॉज एनीवेज इट विल बी रिटर्निंग द पॉइंटर. तो यहाँ पर मैंने दो मेमोरी ब्लॉक्स ले लिए हैं, ठीक है. with the help of this new, what will happen because this is overloaded new, तो malloc के थ्रू क्या होगा, आपके उस ऑब्जेक्ट के जितना एक मेमोरी ब्लॉक हीप में असाइन हो जाएगा, राइट. और फिर यहाँ विद द हेल्प ऑफ दिस शो फंक्शन व्हाट वी कैन डू, विद द हेल्प ऑफ दिस शो फंक्शन, हमें पता है कि पॉइंटर के थ्रू हम एरो ऑपरेटर जब यूज करते हैं तो ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. शो में हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड उसका आउटपुट लिया हुआ है, सी दिस सी आउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, फाइनली आई हैव टू फ्री द मेमोरी. फ्री द मेमोरी आई कैन राइट डिलीट p1 p2, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने यहाँ जैसे फ्री है, सो दैट विल बी फॉलोड. सो आई एम जस्ट सेविंग दिस एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग. So first it is 10, 20, -10 and -20. So this will get printed.
ठीक है, अगेन इट इज टेकिंग टाइम। तो ये आपकी सेम एग्जांपल थी जो मैंने इसमें करी है, एंड इट विल गिव यू बिकॉज 1 minute. So here you can see जब कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हुआ तो इन ओवरलोडेड न्यू, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर हमने लिखा हुआ था, पैरामीटराइज में नहीं, हमने यहाँ पर ये न्यू ऑपरेटर जहां पर हमने ओवरलोड किया है, तो हमने यहाँ पर ये लिखा है इन ओवरलोडेड न्यू। ठीक है, तो इन ओवरलोडेड मींस इट इज वर्किंग 2 times. Why? Because we are हमने 2 बार P1 and P2 पॉइंटर्स को यहाँ पर दिया है। ठीक है, so by declaring these objects means by calling the constructor here, तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ न्यूज के साथ में मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो हो क्या रहा है, न्यू के कारण where I have given the definition of operator overloading, here it is twice it is printed in overloaded new, ठीक है। उसके बाद में show function के call के कारण it is printed 10, 20, -10 and -20, and finally when I am deleting this P1 and P2, then it is printed in overloaded delete, again in overloaded delete, because I have given this message, अदरवाइज हमें पता नहीं चलता। ठीक है, अदरवाइज एनीवेज इट इज वर्किंग, इट इज मैलॉक काम कर रहा है, फ्री काम कर रहा है, बट ये हमने इसलिए ये मैसेजेस रखे हैं सो दैट वी कैन गेट टू नो व्हाट इज बीइंग डन, राइट? ओके, आफ्टर दैट now today we have learned new and delete operator overloading. Then we have ये जो array का जो subscript operator होता है, इसको भी हम overload कर सकते हैं। ठीक है, so in C++, this bracket, this square bracket is considered a binary operator when you are overloading it. ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, पहले मैं इसी के बारे में बात कर देती हूँ। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं अगर मेन, इफ आई हैव एरे, तो मेरे पास में इंट ए 10 है। ठीक है, दिस इज द एरे। बाद में मैं मेन में क्या करती हूँ, सी आउट A0 या A5 ऐसे कुछ करके लिख देती हूँ, तो डेटा will get printed. But now if I have a class and in main I have the object of this class, let us suppose I create array of 10 objects, right? Now directly I cannot do कि आप सी आउट कर दीजिए obj5 को। ठीक है, ऐसा तो यहाँ पर हमारे पास में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो होता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसके बहुत सारे डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, यस। तो आप ओबीजे 0th का ए प्रिंट करना चाह रहे हैं या बी प्रिंट करना चाह रहे हैं, या ओबीजे 5 का ए प्रिंट करना चाह रहे हैं, बी प्रिंट करना चाह रहे हैं, सो दैट वी हैव टू गिव, राइट? दिस डायरेक्टली वी कैन नॉट गिव इन मेन, राइट? तो इस सिनेरियो को यहाँ अदरवाइज तो एरर आ जाएगा। इस एरर को करने के लिए what we will do, we will be overloading this square bracket, this subscript operator। ठीक है, तो हम इसको ओवरलोड करेंगे। हमें पता है कि जब हम ओवरलोडिंग करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले रिटर्न टाइप, अगर आप इसको बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्लास का नाम हमें लिखना पड़ेगा, अगर क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं इस फंक्शन को, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन ऑपरेटर कीवर्ड, उसके बाद में हमारा ऑपरेटर क्या है, सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट हम यहाँ डालेंगे, फॉलोड बाय एनी आर्ग्यूमेंट इफ यू हैव। ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट हम इसमें देखेंगे कि कैसे काम करता है। Technically, the parameter does not have to be of type int, but an operator. This function is typically used to provide array subscripting, and as such, an integer value is generally used. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर object 3 के बारे में बात कर रही हूँ, if I write obj3, then what happens? It will be treated as obj dot operator 3.
ठीक है। तो नॉर्मली हमने ये कल भी करके देखा था कि नॉर्मली अगर मैं obj3 लिख रही हूँ तो इसको कैसे बाय डिफॉल्ट फंक्शन कॉल कैसी होगी, आप दोनों तरह इसको यूज कर सकते हैं, दिस obj3 ऑल्सो, और ये नीचे जो मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट किया है। सो व्हाट इज दिस obj डॉट ऑपरेटर, तो कौन सा ऑपरेटर, ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, देन पैरामीटर में क्या आ जाएगा 3, दैट इज व्हाई हियर आई हैव टेकन int I। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल एक बार इधर देख लेते हैं, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो हेयर आई एम हैविंग वन क्लास ए टाइप, जिसमें मेरे पास में ए इज द array of 3 elements, integer array of 3 elements। तो पब्लिक में I create one constructor, कंस्ट्रक्टर में मेरे पास में जो भी वैल्यूज आती हैं वो मैं इस इंटीजर एरे में, मेरे पास में a0 a1 a2 है, तो उन एलिमेंट्स में मैं इन वैल्यूज को असाइन कर देती हूँ। ठीक है उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस ऑपरेटर को ओवरलोड करती हूँ। नाउ व्हाट यू हैव टू राइट इन द डेफिनेशन, आप चलाएंगे तो इसको हमारा मेन मीनिंग क्या है कि आप इस ऑब्जेक्ट को क्या करें, आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डेटा डिस्प्ले करें। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू डिस्प्ले ओनली द फर्स्ट एलिमेंट, या डिपेंडिंग ऑन द आई, डिपेंडिंग ऑन द नंबर आई, तो आप ith एलिमेंट को आप यहाँ से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या मेनली रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करिए, जो भी इस एलिमेंट जो आपने डेटा मेंबर लिया है, आप उसका ith वैल्यू आप यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आप कितने कहाँ चला गया वो, कि आप यहाँ पर कौन सा, यहाँ अगर A है इसका डेटा मेंबर या B है इसका डेटा मेंबर, तो आप कौन से डेटा मेंबर को आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, कौन से डेटा मेंबर को प्रिंट करना चाह रहे हैं राइट। तो अब जब मैंने मेन के अंदर क्या किया, इस क्लास का नाम लिखा A टाइप एंड ऑब्जेक्ट एंड आई एम गिविंग द वैल्यूज 1 2 एंड 3, तो ये क्या है, ये अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो 1 2 एंड 3 किसको असाइन हुआ, I को, J को एंड K को रिस्पेक्टिवली। सो I जो 1 है दैट विल बी नाउ असाइन टू A0, राइट। तो 1 है मेरे पास में, दैट विल बी असाइन टू A0, 2 जो है दैट विल बी असाइन टू A1 एंड 3 जो है दैट विल बी असाइन टू A2। यस, अब ये हो गया। नाउ इफ यू वांट टू राइट सी आउट OB1, ठीक है, OB1 मतलब क्या, आपने कोई ऑब्जेक्ट का तो एरे नहीं बनाया, तो OB1 का मतलब क्या है, दैट वी आर कैन राइट इट लाइक OB डॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर, और फिर कौन सा ऑपरेटर है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, साथ में आप कौन सी वैल्यू देना चाह रहे हैं, दैट इज 1। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी इसको हम कॉल कर सकते हैं, इसके आगे सी आउट लिख दीजिए तो प्रिंट हो जाएगा। यस, तो OB1 मीन्स this 1 I will be 1 and A1 means what value we have, that is 2 and 2 gets printed। ठीक है, इसको मैं सेव करके एक बार एग्जीक्यूट भी कर देती हूँ so that you will get to know the answer। ठीक है, हो गया, तब तक ये कर लेते हैं। ठीक है, तो एनीवेज इट विल डिस्प्ले 2, जब तक आएगा तब तक देखते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अब आ गया ये, एक मिनट। तो 2 गेट्स प्रिंटेड। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक और एग्जांपल लेती हूँ, सेम है मेरे पास में, सेम A टाइप इज द क्लास एंड A डेटा मेंबर है, इट इज इंटीजर एरे हैविंग 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर चाहे आप रेफरेंस भी हटा दीजिए, तो यहाँ अब मेरे पास में मेन में देखिए क्या है, अगेन आई एम हैविंग दिस 1 2 एंड 3, यहाँ तक हमने किया हुआ है दैट इट विल डिस्प्ले 2। ठीक है, अब दूसरा क्या है, आप डायरेक्टली कोई डेटा आप ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को। कैसे, जैसे हमारे पास में यहाँ OB1 लिखा हुआ है, तो क्या OB1 का मतलब क्या, दैट इट इज OB डॉट ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट साइन, ब्रैकेट में क्या है 1। ठीक है, तो 1 मीन्स A1 मीन्स यहाँ पर क्या था, 2 था, सो नाउ दैट विल बी रिप्लेस बाय 25। ठीक है, तो जब आप OB1 को जब आप यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं, तो इट विल नॉट प्रिंट 2,
Why? Because we have assigned 25 to that OB1. OB1 मतलब आपका जो आप यहाँ पहले OB1 में जाएंगे, so that will be OB1. So that means A1. आपने definition में क्या दे रखा है? A1. So this A1 will now not be 2, but it will be 25. If you are printing it, that comes out to be 25. So just now it will come. Let's wait. पहला जो 18th लाइन है उसके लिए 2 प्रिंट हुआ और जो 21st लाइन है उसके लिए 25 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम यहाँ पर डायरेक्टली, मेन हमारा क्या मकसद था कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसे डायरेक्टली हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते थे, बिकॉज इफ यू हैव टू राइट सी आउट हेयर, यू हैव टू प्रिंट सम वैल्यू, विच वैल्यू यू हैव टू प्रिंट, विच डेटा मेंबर इट शुड प्रिंट, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कंपाइलर वाज नॉट एक्सेप्टिंग दैट, दैट्स व्हाई वी हैव ओवरलोडेड द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ठीक है, हमने यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग करी है, राइट। ये एग्जांपल इसकी हो गई। ओके, देन वी हैव टू ओवरलोड दिस फंक्शन की जो ब्रैकेट है हमारी राउंड ब्रैकेट, इसको हमें ओवरलोड करना है। यस, व्हेन वी ओवरलोड द फंक्शन कॉल ऑपरेटर, we are not creating a new way to call a function. अच्छा, पहले इसको भी देखने से पहले हम एक और चीज देखते हैं। ये चीज हमने अभी जब सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर देखा तो फिर हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ये चीज चलनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉर्मल एक जैसे फंक्शन की कॉल होती है, ये फंक्शन ऑपरेटर, ये जो राउंड ब्रैकेट है, इसको हम कैसे यहाँ पर ओवरलोड करेंगे, इसका फायदा क्या होगा। देखो, मेन के अंदर हम क्या करते हैं, मेन के अंदर इफ आई हैव अ क्लास ए, उसका मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, जब मैं राउंड ब्रैकेट डालूंगी कभी भी तो क्या होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर मैं यहाँ पर 1,2 देती हूँ तो यहाँ इट मीन्स कि यहाँ पर ए क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, दैट विल बी, दैट मे बी सम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इंट एक्स इंट वाई, तो ये 1 and 2 एक्स में चला जाएगा, और इसमें आपने अगर कुछ ए को मतलब एक्स की वैल्यू को इधर असाइन किया हुआ है ऐसे, सो दैट विल बी ट्रांसफर्ड, है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन हो जाएगी उसको। ठीक है, ओके, ये जो चीज है हम जो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, दिस कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। अब ऐसा तो है नहीं है कि हम 4th या 5th लाइन में मेन की उस समय मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रही हूँ, 5 and 6 यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया है ना। Declare in the sense, if I am declaring it, then I have to put the class name also. Yes, but हमारे पास में अब एक ऐसा सिनेरियो भी हम क्रिएट कर सकते हैं that if I have to change the values of this A and B data, that is the data member of A class, then I can write like this also, 5 and 6 also. ये भी अगर हमारे पास में मेन के अंदर आगे जाकर मैं ऐसा कुछ राउंड ब्रैकेट लिखती हूँ, वो ये ना समझे that this is the declaration. Yes, and there should not be conflict between this object name, right? I can use this bracket by operator overloading. Overloading this, which operator? This round bracket operator. I can overload this round bracket. ठीक है? Okay, so rather you are creating an operator function that can be passed in arbitrary number of parameters. अब इसके अंदर हम कितने भी number of parameters डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार इसके एग्जांपल पहले यहाँ पर कर लेते हैं। राउंड, ठीक है, ये मैंने एक छोटी पहले एग्जांपल ले रखी है। ओके, so I have a class test here. तो यहाँ मेरे पास में A, B डेटा मेंबर्स हैं, and this is the default constructor that I have created. Ayush, एक मिनट, let me complete first. So I have test construct class here, and I am creating default constructor. ठीक है, default constructor इस A, B को 0 वैल्यू असाइन कर रहा है, और इसमें मैंने एक मैसेज प्रिंट किया default constructor। साथ के साथ मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी दिया है कि हम जो भी कुछ वैल्यू देते हैं वो पैरामीटर्स जो है वो ए एंड बी को असाइन हो जाएं। ठीक है, फिर डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है जो इसको प्रिंट करता है ए एंड बी की वैल्यूज को। फिर हम इस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, ऐसे लिखते होते हैं void then ऑपरेटर, और साथ में राउंड ब्रैकेट को मुझे ओवरलोड करना है, सो आई एम राइटिंग दिस सिंबल, देन आई एम टेकिंग दीज पैरामीटर्स,
ठीक है, यहाँ मैंने कुछ डेटा लिया है, दैट कैन बी असाइन टू दिस ए एंड बी। आप इसमें कुछ भी वैल्यूज डाल दीजिए, ठीक है। अब मेन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट T1, ठीक है। टेस्ट T1 में मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर a की वैल्यू 0 आएगी एंड b की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। नाउ इफ यू डिक्लेयर टेस्ट T2 10 एंड 20, तो इसमें क्या होगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा, ठीक है। एंड व्हेन यू प्रिंट द वैल्यूज, तो a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो कुछ नहीं है इसमें। देन आई एम अगेन राइटिंग T2, now it is not declaration, right? It is not declaration, and I am assigning 20 and 40. I am passing two arguments. This will be taken as T2. It will be assumed as T2 dot operator साथ में मैं इधर कौन सा ऑपरेटर है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। साथ में आप दो यहाँ पर इंटीजर्स दे रहे हैं, कौन सा, 20 and 45, ठीक है। एंड देन यू आर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। 1 minute। ठीक है, so here now 20 and 45 will be assigned to क्या, x and y, और साथ में that will be now assigned to a and b। और T2 का ही ऑब्जेक्ट है। T2 में पहले क्या था, हमारे पास a एंड b की वैल्यू 10 एंड 20 थी, बट अब हमारे पास में क्या होगी, 20 एंड 45। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो था, इसके कारण डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। देन उसमें a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0। Then because of this 29th line, when I'm declaring T2 object, their parameterized constructor is called and 10 and 20 gets assigned to a and b। और उसके बाद में जैसे हमने ये T2 या 32nd लाइन में लिखा है, 32 लाइन में T2 में 20 and 40 that will be assigned to a and b of कौन से ऑब्जेक्ट, of T2 ऑब्जेक्ट ओनली। तो सेम ऑब्जेक्ट में हम अपने डेटा को चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। इसमें एक और भी एग्जांपल है, दैट आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड। सेम एक लोकेशन नाम की जैसे पहले क्लास बनाई थी, तो सेम ऐसे लोकेशन नाम की क्लास बनाई है। उसमें मेरे पास में दो डेटा मेंबर्स हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक। उसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है एंड देन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है। शो फंक्शन, ये नॉर्मल हमारी चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं। शो फंक्शन तो इसको क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है इसके डेटा मेंबर्स को। Then I have plus operator and ये जो हमारा फंक्शन का राउंड ब्रैकेट है उसको यहाँ इन दोनों को मैंने ओवरलोड किया हुआ है, ठीक है। अब ओवरलोडिंग हमने इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लास के बाहर दी है। यस, सो व्हाट इज दिस, LOC is the type, is the name of the class, right? तो यहाँ it is the return type of the means an object is returned, ठीक है। so location LOC is the name of the class here, second जो LOC है, then operator इस ब्रैकेट को ओवरलोड किया है। इसकी डेफिनेशन में क्या दे रखा है, हमने दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं और वही दो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इनको असाइन हो रहे हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जो इसके डेटा मेंबर्स हैं, एक्चुअल डेटा मेंबर्स हैं इस क्लास के, ठीक है। एंड देन आई एम रिटर्निंग दिस पॉइंटर, वैल्यू एट दैट दिस पॉइंटर, मतलब सेम ऑब्जेक्ट जो है इसको कॉल करेगा वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो प्लस ऑपरेटर को भी जैसे हमने कल किया था कि बाइनरी ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं, तो मैंने प्लस ऑपरेटर को भी यहाँ ओवरलोड किया हुआ है इस एग्जांपल में। साथ में जो भी मेरे पास में इस प्लस ऑपरेटर को कॉल करेगा जो ऑब्जेक्ट, वो एज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यहाँ पर आएगा उसका डेटा। एंड देन OP2, दिस इज ऑब्जेक्ट 2, तो इसका भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसके साथ में ऐड हो जाए, ठीक है। और इसका जो दोनों का रिजल्ट है वो मैं डाल रही हूँ एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट में। तो टेम्पररी ऑब्जेक्ट के लॉन्गिट्यूड में उन दोनों का लॉन्गिट्यूड ऐड होके जाएगा, टेम्पररी डॉट लैटिट्यूड, टेम्पररी ऑब्जेक्ट के लैटिट्यूड में ऑब्जेक्ट जो इसको कॉल कर रहा है एंड ऑब्जेक्ट 2, इन दोनों का लैटिट्यूड होके सम हो जाएगा एंड देन यू कैन रिटर्न दिस टेम्पररी ऑब्जेक्ट। यस, अब मेन में आते हैं।
हमने मेनली क्लास में क्या लिखा है, एक क्लास है LOC नाम की लोकेशन, डेटा मेंबर्स हैं, हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया, शो फंक्शन जो डिस्प्ले करा रहा है, और फिर हमने प्लस एंड इस ब्रैकेट को हमने क्या किया है, ओवरलोड किया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम मेन में इसको लिखेंगे, देखेंगे क्या क्या हमारे पास में डेटा है, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड देन वी कैन गो टू द फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, चलो, so first is LOC, this is the name of the class, OB1 N20, comma OB2 1 and 1. ठीक है, तो OB1 is the object, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो ऑब्जेक्ट 1 में क्या वैल्यूज हैं, 10 एंड 20। ऑब्जेक्ट 2 भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो ऑब्जेक्ट 2 में क्या है, 1 एंड 1। ठीक है, तो जब आप इसको शो करते हैं, जब शो फंक्शन में हम इसको शो करते हैं, किसको, OB1 को, तो ऑब्जेक्ट 1 में क्या आएगा हमारे पास में, A एंड B में 10, 10 एंड 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा। नाउ OB1 7 एंड 8, तो ये क्या है, आपने जो भी OB1 में असाइन किया था 10 एंड 20, नाउ दैट हैज टू बी नाउ चेंज्ड, कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस bracket, round bracket operator overloading. So OB1 7 and 8, so what happens now, let's go to this, so the definition ये जो follow होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 7, I की जगह 7 and J की जगह 8, so this is 7, so this comes out to be 7 and this comes out to be 8, so that will be now given to longitude and latitude, and then it is saved in the same object जो इसको कॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर, या फिर हम इसको, जैसे हमने वो लिखा कि यहाँ क्या होता है, इसको OB1 कॉल कर रहा है, OB1 डॉट ऑपरेटर, और साथ में इसकी राउंड ब्रैकेट, साथ में आप ब्रैकेट में क्या डाल रहे हैं, 7,8। ठीक है, यस, एंड देन यू आर अगेन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 1। तो OB1 में अब क्या हमारे पास में आएगा, 10 एंड 20 नहीं होगा, नाउ इट विल बी 7 एंड 8। ठीक है, यस, ओके। Now next what happens, now we have OB2 plus OB1 और साथ में ये क्या है, 10, 10। ठीक है, तो आप ऐसे, ये जो हमारे पास में ये राउंड ब्रैकेट ऑपरेटर है, इसको हम कैसे भी एक्सप्रेशंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, OB1 10 10 मीन्स नाउ दिस 7 एंड 8 अब जो है वो वहां पर 10 एंड 10 हो जाएंगे। ठीक है, एंड जो ऑब्जेक्ट 2 में है उसका डेटा इसमें ऐड हो जाएगा। पहले मैं इसको रन कर देती हूँ, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो क्या है हमारे पास में, OB1 में जो पहले 7 8 था, नाउ दैट हैज टू बी नाउ चेंज्ड विद व्हाट, 10 एंड 10, सो दैट विल नाउ OB1 में क्या रहेगा, 10 एंड 10। ठीक है, तो नाउ OB2 विल बी कॉलिंग, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, नाउ ओहो, OB2 हैज टू कॉल, यस, so OB2, this will be written as OB2 डॉट ऑपरेटर, कौन सा, प्लस ऑपरेटर है, यस, so this is प्लस ऑपरेटर, और साथ में कौन सा यहाँ पर डेटा मेंबर जाना चाहिए, OB1। ठीक है, अब OB1 में 10 एंड 10 है, तो दैट विल बी नाउ, अब क्या है, प्लस ऑपरेटर पर चलते हैं, तो ये दिस इज अ प्लस ऑपरेटर, तो यहाँ पर कौन पास हो रहा है, OB1 जिसका डेटा 10 एंड 10 है, so now this OB1 10 and 10, so this will be 10 and 10, that will be added to longitude and latitude of object 2, जिसमें 1 and 1 था। ठीक है, इसमें पहले हमारे पास में क्या, 1 and 1 मीन्स 10, देखो लास्ट में क्या है, 10 and 10, और ऑब्जेक्ट 2 में क्या था, सबसे पहले जो लिखा हुआ है 1 and 1, फाइनली जब आप ऑब्जेक्ट 1 में इसको स्टोर कर रहे हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट 1 में जाकर असाइनमेंट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट 1 में डाल रहा है, तो इसको इट विल बी प्रिंटेड 11 and 11। ठीक है, तो कौन सा हमारा डेटा है, मतलब हमने क्या इसमें सीखा कि डायरेक्टली आप ये राउंड ब्रैकेट से उसको ओवरलोड करके क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा को आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आपने उसको चेंज किया, तो ऑब्जेक्ट 1 में यहाँ 10 and 10 है, तो इसमें आप ऑब्जेक्ट 2 को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पर अब ये भी क्या है, प्लस इज द बाइनरी ऑपरेटर दैट इज ओवरलोडेड, तो ओवरलोडिंग यहाँ पर क्या कर रही है,
यहाँ पर हमारे पास में दिस OP2 is it is what it is 10 OP2 dot longitude is 10 OP2 OP2 dot latitude is 10 longitude and latitude 1 है, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा. ठीक है. यस. ओके. अब इससे पहले कॉमा ऑपरेटर से इससे पहले किसी को डाउट था, पहले वो पूछ लीजिए. किसी ने हैंड रेज किया था, बताइए. किसी ने हैंड रेज किया था बीच में ना. You can raise your hand and again ask. Okay. So right now up till now what we have done. Yes, Ayush. Yes, Ayush. मैम वो जो कोड के बारे में आपने कुछ एक बीच में चीज बताई थी ऑपरेटर के बारे में, वो एक बार दोबारा बता दो. तो पिछले कोड में मैम ओवरलोडिंग के बारे में एक चीज बताई थी आपने कि इस केस में नहीं होगी. किस केस में नहीं होगी मतलब एक बार दोबारा पूछो. याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. एक बार रिकॉर्डिंग नहीं तो देख लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. कौन सी नहीं होगी. आई थिंक मैंने यहाँ ऐसे बताया था इस एग्जांपल में. यस मैम, ये इसमें देखो हम ऑपरेटर ओवरलोड, देखो मैं शुरू से बताती हूँ आपको. हम ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों कर रहे हैं, क्या इसका मतलब क्या है. देखो नॉर्मल अगर मैं क्या करती हूँ, इंट आई कॉमा जे लिया, इसको मैं कहीं पर भी आई प्लस जे मेन के अंदर कहीं पे आई प्लस जे मैं डाल सकती हूँ. ठीक है. तो ये ऑपरेटर जो है ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए बना है आई एंड जे. बट अगर मेरे पास में क्लास है उसमें मेरे पास में ये रियल और इमेजिनरी, आपको याद है हमने वो कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बनाई थी, उसमें ये डेटा था. तो अगर मैं इस क्लास के अंदर मैं ज्यादा नहीं इसमें बना रही हूँ, तो मेन के अंदर मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बनाती हूँ. ठीक है. इस क्लास ए का obj1 एंड obj2. ठीक है. तो मैं लेटर ऑन क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर obj1 प्लस obj2 ऐसे परफॉर्म मैं नहीं कर सकती. ये चीज डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि obj1 में भी एक रियल मेंबर है और एक साथ में इमेजिनरी डेटा है. ऐसे ही obj2 में भी एक रियल एंड साथ में इमेजिनरी डेटा है. ठीक है. तो ये एंटिटीज ऐड हो सकती हैं, रियल में रियल ऐड हो सकता है, या आप इसको उठा के इसमें ऐड कर दो, क्योंकि ये सब डेटा जो आपने यहाँ लिया है वो इंटीजर डेटा है. बट आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं ऐड कर सकते. इसलिए हमने क्या किया, इस प्लस को ओवरलोड किया. उस ओवरलोडिंग के लिए हमने एक फंक्शन बनाया कि क्या है वो ऑपरेटर, और फिर प्लस को मैंने ओवरलोड किया कि अगर मुझे इस प्लस को यहाँ 15th लाइन के सिनेरियो में मुझे यूज करना है तो फिर क्या होगा, तो मुझे इसको ओवरलोड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर फिर मैं उसको लिखती हूँ कि जो ऑब्जेक्ट 1 का जो रियल पार्ट है उसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 का रियल डेटा मेंबर उसमें ऐड हो जाए. यस ऐसे ही आपने ये पहले किया हुआ है, लास्ट एक बार लेक्चर देख लेना उसकी रिकॉर्डिंग. ठीक है. तो यही चीज क्या है, यही जैसे प्लस है, और आज हमने क्या किया था, जैसे इंट एरे 5 मैंने लिख दिया, ये 5 का एरे है, मैं सी आउट डायरेक्टली A5 कर सकती हूँ, सॉरी A4 मैंने कर दिया, या कोई भी ऐसा मैंने कर दिया डेटा. यस, सो दैट डेटा गेट्स प्रिंटेड. बट अगर मेरे पास में मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, मेन के अंदर एक ए क्लास का ऑब्जेक्ट एरे है. यस, तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कर सकती डायरेक्टली कि सी आउट मैंने ऑब्जेक्ट का मैं सेकंड एलिमेंट प्रिंट करवा दो. लेकिन कौन सा, अब जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर तो बहुत कुछ होता है. उसके अंदर तो हमारे पास में डेटा भी होता है प्लस फंक्शंस भी होते हैं, है ना, हमने पढ़ा है. यस, फंक्शंस भी होते हैं, डेटा भी होता है. तो आप कौन से डेटा को, और डेटा भी खूब सारा होता है, कोई फ्लोट में है, कोई इंटीजर में है, ABC कितना कुछ डेटा है. कौन से डेटा को आप प्रिंट कराना चाह रहे हो, क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हो, दैट वी हैव टू स्पेसिफाई. फॉर दैट आई विल बी डूइंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर दिस. ये जो रेड में आप हाईलाइट हुआ है वो ब्रैकेट को, सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट को ओवरलोड करना पड़ेगा, तभी हम
एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। पॉसिबल ये भी है, मैं ये नहीं कह रही कि ये पॉसिबल नहीं है। Until we overload this operator, then only it will work. If we do not overload ये वाला operator, जो हम ये bracket लगाते हैं ये वाली, if I do not overload this operator, तो ये नहीं चलेगा। Similarly, आप एक यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ, obj मैंने यहाँ लिखा 1,2, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही हूँ। यही होता है ना अगर मैं पहली लाइन में डिक्लेरेशन करती हूँ किसी ऑब्जेक्ट की, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ, मैं दोबारा से इस ऑब्जेक्ट को मैंने 3,4 लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो एक बार, नहीं तो मैं न्यू ये देखो मैं एक बार करके दिखाती हूँ। यहाँ पर कहाँ चला गया, ये रहा। तो मैं एक बनाती हूँ क्लास में मैं एक ए बना दी मैंने, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर एक मिनट, इंट ए कॉमा बी, यस, पब्लिक में मैं ए नाम का कंस्ट्रक्टर दे रही हूँ जिसमें इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और फिर मैं क्या करती हूँ, ए को एक्स असाइन कर देती हूँ एंड बी को वाई असाइन कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इंट मेन लिख रही हूँ, यहाँ पर ये हो गया। ओके चलो मैं इसको करती हूँ सेव .cpp, नो, चलो अब मैं इसको करती हूँ एग्जीक्यूट, ठीक है। One minute. So it will give you error. Why? No match for call a int. It is supposing कि ये constructor को call कर रहा है, but constructor कब call होते हैं? Do you remember that constructor में हमने कहा था कि जब initialization होती है, only then they are automatically called. Do you remember that कि automatically call होते हैं, but जब initialization होती है, और जब डेक्लेरेशन आपने किया तभी इनिशियलाइजेशन हो गई, तो यहाँ पर ये काम नहीं करता। नाउ इसका सोल्यूशन क्या है? अगर मुझे ये कुछ करना है तो मैं यहाँ पर एक यहाँ क्या बनाती हूँ, मैं यहाँ पर एक ऑपरेटर बनाती हूँ। ऑपरेटर कौन सा ओवरलोड करूंगी? इस ब्रैकेट को, और फिर मैं यहाँ पर अपना कुछ वेरिएबल्स दे दूंगी, आर्गुमेंट्स, एंड देन आई कैन गिव सम डेफिनेशन। आफ्टर दैट आई कैन यूज दिस। क्या मैं इसको, अच्छा इसका हमने एक और भी डेफिनेशन पढ़ा था, कैसे ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको एज अ फंक्शन ही कॉल करता है। ऑपरेटर कैसे, ब्रैकेट को कॉल किया और साथ में आपने आर्गुमेंट दे दिया 3,4। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो पूछो। आपको समझ में आ गया आयुष? कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। We have 4 minutes left. Shall we do next example also? हाँ जी बेटा आयुष बोलो। मैम वो मैं म्यूट हो गया था इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। Shall we go with next example also? Or if you have any doubt you can ask me. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, दैट इज द कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, तो जो कॉमा ऑपरेटर है, हाँ इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आइए, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। आई हैव दिस, एक मिनट जरा रुको। So I have this class called location. I have these data members longitude and latitude. Same है, हमारे पास में parameterized constructor है, तो नाम का function जो इसको display कराएगा। Now here I have operators, plus को overload कर रखा है। इसकी overloading same है जो हमने binary में अभी last example में भी करी थी। हम comma operator को overload करेंगे, ठीक है। तो comma operator पहले हम इसमें देखते हैं कि यहाँ कैसे काम आ रहा है, मेन के अंदर कैसे इसको शो कर सकते हैं। देखो एक तो नॉर्मल है कि आप यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो वहां कॉमा डाल के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर करते हैं तो हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ शो फंक्शन से हमने चलो इसको दिखा दिया। नाउ फोकस ऑन 42nd लाइन। इसमें क्या है, OB1, OB2 प्लस OB2
प्लस मतलब ये एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग से हम प्लस कर लेते हैं. अगेन आई हैव कॉमा एंड देन आई हैव OB3. ठीक है, ये कॉमा ऑपरेटर है, इसकी हम ओवरलोडिंग देखेंगे कि इसमें क्या है. So now let us suppose let's start with first main function. Main में हमारे पास में object 1 है, it is having 10 and 20. तो जो भी object 1 है उसके longitude में 10, latitude data में 20 आ जाएगा. Object 2 के longitude में 5, latitude में 30. Object 3 के longitude and latitude में 1 1 आ जाएगा. तो आपने इसको show करवा लिया, वो show आपने show function से सब इन सबको display करा लिया. चलो अब आ जाओ इस लाइन में, यहाँ पर OB, इसको मैं अलग लिखती हूँ जरा, ये रही OB इज इक्वल टू OB1 प्लस OB2 प्लस OB2 कॉमा OB3. अब आप ये देखो, आपके पास एक कॉमा ऑपरेटर है, दूसरा आपके पास में एक प्लस बाइनरी प्लस ऑपरेटर है. ठीक है, अब आप पहले इसकी क्या चेक करोगे, प्रेसिडेंस चेक करोगे. कॉमा जो होता है उसकी लीस्ट प्रेसिडेंस होती है, कॉमा ऑपरेटर की लीस्ट प्रेसिडेंस होती है. तो कौन पहले काम करेगा, पहले प्लस ऑपरेटर काम करेगा. ठीक है, तो पहले ये जो बीच में हमारे पास में जो एंटिटीज हैं वो काम करेंगी. वो क्या है, OB2 प्लस OB2. इसका मतलब क्या, ये यहाँ पर कैसे इसको रखेंगे, कैसे लिख सकते हैं कि OB2 इसको कॉल कर रहा है डॉट ऑपरेटर कौन सा, प्लस साथ में OB2, इसको ऐसे समझना है. ठीक है, जो भी इसकी डेफिनेशन है हमारे पास में, क्या है डेफिनेशन, पहले हम इसमें जाते हैं प्लस, तो ये दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगी एंटिटीज. ठीक है, आप इसको पर देख लेना, ये नॉर्मल आप बाइनरी ऑपरेटर है, ये ऐड हो जाएंगी इसकी एंटिटीज. ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है मेरे पास में, जब ये सॉल्व हो गया तो किस में जा रहा है आपका आउटपुट, OB2 में जा रहा है. ठीक है, किस में जा रहा है आपका डेटा, OB2 में. देन व्हाट हैपेंस, तो ये जो आपका यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो क्या होगा, इट विल बी लाइक OB1 कॉमा OB2 में ही ऐड होके डेटा रहेगा कॉमा OB3. ठीक, तो OB3 में हमारे पास में डेटा. नाउ इट कैन बी सॉल्व्ड. कैसे, अब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कॉमा ऑपरेटर से कर सकते हो. अब बस तो गायब हो गया, खत्म. और यहाँ कैसे, OB1 जो है दैट विल बी कॉलिंग OB2 ऑपरेटर. कैसे, ऑपरेटर. ठीक है, ऑपरेटर कौन सा, कॉमा ब्रैकेट में OB2. तो OB2 में हमारे पास में ये सबसे पहले दोनों सॉल्व होंगे. तो ये सॉल्व होंगे तो आपका किस में डेटा सेव होगा, OB1 में. एंड देन फाइनली क्या होगा, OB1 जो है दैट विल बी कॉलिंग अगेन कॉमा OB3. ये वाला आपके पास में रह जाएगा. मैं इसका दिखा देती हूँ एक बार, उसमें भी फंक्शनैलिटी. एंड फाइनली आपका जो, इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, यहाँ हमारे पास में OB3 आएगा. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या है इसकी डेफिनेशन में हमने रखा हुआ. तो ये है हमारे पास में इसकी डेफिनेशन. आई हैव वन आर्ग्यूमेंट हेयर, और जो भी आप इसमें आर्ग्यूमेंट में डाल रहे हैं क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका डेटा मेंबर्स डायरेक्टली एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है. और आप इस जो आपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट डाला है उस ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर्स यहाँ प्रिंट हो रहे हैं. कुछ भी नहीं है, हम वी आर जस्ट असाइनिंग द डेटा मेंबर्स. आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, कॉमा सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें यूज हुआ है. ठीक है, तो जब आपको मेनली क्या चीज देखनी है कि इस एक्सप्रेशन में आपके पास में कौन सा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. तो बाइनरी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई है, देन कॉमा, एंड देन द डेटा गेट स्टोर्ड इन OB2, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है, अगेन जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया. सो दिस gets stored in OB2, and finally what happens, now first left to right कॉमा ऑपरेटर चलता है, तो पहले ये वाला सॉल्व होगा. OB1 dot, this will be treated as like this, OB1 dot operator कॉमा OB2. जब ये सॉल्व हो जाएगा तो डेटा किस में पड़ा रहा, OB1 में. राइट, नाउ आपके पास में OB3 है, सो नाउ दिस विल बी ट्रीटेड एज OB3. यस, उसके साथ में आपके पास में ये सब आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम.